और बताएं एम्बेसडर, हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्मारक चोटिल भी गए। आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा का और अपने दूसरे कार्यक्रम के तहत वो जो राष्ट्रीय संग्रहालय है चोटिल वहां पहुंचे। Right, meeting monks there at the Chorten, a very significant part of Bhutanese culture, and Chorten or Stupa, an important monument in Buddhism symbolizing the Buddha's presence. And Prime Minister Narendra Modi reaching out there, strengthening ties of culture, strengthening the people-to-people connect between the two countries. बिल्कुल थिम्फू शहर के बीचों बीच ये स्थित है और भूटान के सबसे ज़्यादा आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में ये शुमार है, नेशनल मेमोरियल चोटिल। And it holds precious Buddhist relics, and it believes that it forms a very important part of Bhutanese religious culture. उनके तीसरे ड्रूक ग्याल्पो की स्मृति में इस मेमोरियल चोटिल का निर्माण किया गया था। इसे समर्पित किया गया विश्व शांति के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट, उनकी यात्रा और नेशनल मेमोरियल चोटिल में जाना वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसा स्मारक है जो वैश्विक शांति को समर्पित है और वैश्विक मंच पर भारत लगातार विश्व शांति के लिए अपील करता रहा है। Chorten literally means seat of faith, and Buddhists often call such monuments the mind of Buddha. The Chorten is an extraordinary example of Buddhist architecture and artwork with its gorgeous paintings and intricate sculpture. One of the most iconic monuments of Thimphu. Prime Minister Narendra Modi there paying his respects at the Chorten in the traditional Bhutanese way. धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इसकी बहुत मान्यता है भूटानी लोगों के बीच। We have with us Ambassador Tayal. Sir, would you like to take us to the significance of the message that the Prime Minister is sending out today as he performs this very important ritual, which we believe is a very important part of Bhutanese culture? This monument is it denotes the Tibetan Buddhism, because the Bhutanese Buddhism really came from Tibet, and the monks first came, and so Indian Buddhism, or from India it went to Tibet, and from Tibet it went to Bhutan. They were very mountainous if we think of 1000 years back or even more. And most of the inscriptions and images and writings on Chorten relate to Tibetan Buddhism. And it has been created after the expiry of the third king, third Gyalmo. It was created by third Gyalmo's mother, and it doesn't have any remains of the late king, but the entire sculpture or monument is devoted to world peace, and it reflects Tibetan Buddhism. So it is rooted in the past, that it is Tibetan Buddhism, but the message is for peace in Bhutan and peace in the world. And Prime Minister is going there is a showing respect and regard for Tibetan Buddhism, Bhutanese religion, and also a regard for the third king, and also his devotion for world peace. बिल्कुल एम्बेसडर तयाल, हम जब भी देखें कि प्रधानमंत्री की जब भी किसी भी जगह पर, किसी भी देश में वहाँ पे वो जाते हैं, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की परंपरा और वहाँ की भाषा, इन तमाम चीज़ों को इस तरह से वो आत्मसात कर लेते हैं कि यकीनन वहाँ के लोगों को भी अजरज होता है कई बार प्रधानमंत्री के इस व्यक्तित्व के इस पहलू से। इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि बहुत ही शालीनता से, शांति से वो ध्यान से सुनते हुए
इस जगह की जो अहमियत है, इस जगह का जो महत्व है, उसको सुनते हुए वहाँ जा रहे हैं, वहाँ टहल रहे हैं और बहुत ही आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वहाँ पे जिस तरह की वाइब्स हम कह सकते हैं कि वैश्विक शांति को समर्पित है ये, और हम देख सकते हैं जो वहाँ प्रेयर्स, जो व्हील्स होते हैं, अक्सर हमने देखा है कि लोग उसको मूव करते हैं और वहाँ पर उस आत्मिक शांति का वो एहसास करते हैं, और यहाँ पे भी हम ये तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद को कोट किया था कि जी। हर देश का एक मैसेज होता है, हर जो भी लोग हैं किसी भी देश के, उनका दुनिया के लिए एक मैसेज होता है। मैं समझता हूँ कि भूटान का जो मैसेज है पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मैसेज है, एक हैप्पीनेस का मैसेज है कि किस तरह एक ये मैसेज है कि नेचर, प्रकृति और मनुष्य में किस तरह एक हार्मनी रखी जाए और वातावरण को शुद्ध रखा जाए। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं जो बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं, और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का भी जो पूरा जिस तरह से वो चल रहे हैं इस समय, एक दिखाता है कि वो उसको बहुत ही वो प्रभावित है इससे, और एक आत्मसात उन्होंने किया है वहाँ की जो शांतिपूर्ण वातावरण इस समय होगा। ऐसे मॉन्यूमेंट में हमेशा हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि एक शांति का वातावरण होता है और आप खुद भी बहुत ही काम, ट्रैंक्विल फील करते हैं। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री इस वातावरण को आत्मसात कर रहे हैं। बिल्कुल, द वर्ल्ड कैन डू विद लॉट मोर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस विच शैल प्रिवेल ओवर माइंडलेस हेट। इफ़ पीपल आर हैप्पी देयर विल बी हार्मनी। जी हाँ, लोग तभी खुश होंगे जब उन्हें रोज़गार मिलेंगे, जब हम तरक्की करेंगे, जब हम विकास करेंगे, हमारे जीवन में शिक्षा होगी। और इन्हीं मंत्रों के साथ लगातार प्रधानमंत्री हमारे देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, और यही मंत्र उन्होंने भूटानीज लोगों को भी दिया है। जी। Right, and there we can see what you were referring to, Ambassador, about how the Prime Minister, how anyone who visits a Chorten, and as we can see our Prime Minister there relishing the tranquility and the beauty of this iconic monument in Thimphu. It is supposed to have golden spires and bells, and it's one of the most visible monuments in Thimphu. In our thinking, our philosophy, it is believed that every place has some vibrations. True. And these vibrations can be very calming and very tranquil, and really they generate the best thoughts. I think this place, this monument in Thimphu has exactly those very positive, very good vibrations, and Prime Minister's whole demeanor is that he is very happy and very content being there. बिल्कुल, भूटान का संदेश मानवता और हैप्पीनेस है, और भारत इस संदेश को समझता है, आत्मसात करता है, और भूटान का ये संदेश पूरे विश्व को जाना चाहिए। किस तरह से क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के कंसेप्ट से भूटान रूबरू कराता है पूरे दुनिया को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर इस वक्त मौजूद हैं थिम्पू में, जहां सुबह उन्होंने युवा छात्रों से मुलाकात की, उनसे मुखातिब हुए, और फिर शांति का संदेश देने, वैश्विक शांति की बात करने